national level for his contribution in the field of culture and literature. He will be chairing this session. Our esteemed panelists for this session are Dr. Sudhanshu Trivedi ji, and he has become a household name today and needs no introduction. But currently he is Rajya Sabha MP, Rajya Sabha member of Parliament, and national spokesperson of the party, Bharatiya Janata Party. He's an engineer by training, but social engineer by practice. Dr. Trivedi holds a PhD degree in mechanical engineering and served as professor in several Indian universities. He is from our fraternity only. Currently, he is member of parliament and is spokesperson of the party. A noted thinker, political leader, and analyst, Dr. Trivedi has served as information advisor to the Chief Minister of Uttar Pradesh 20 years back. He was the youngest information advisor of any Chief Minister of India. He has also worked as political advisor of National President BJP 25 years back. He has participated as keynote speakers, panelists, participant in many Ivy League universities and other countries of the world. He's a rare talent from the galaxy of political leaders who is being invited in different parts of the country and abroad to speak on topics like culture, spiritualism, and science. Our third panelist is Professor Shantishi Pandit ji. Shantishi Pandit ji is currently Vice Chancellor of Jawaharlal Nehru University, and he is the first alumna of Jawaharlal Nehru University who is serving as Vice Chancellor of JNU and first women Vice Chancellor of Jawaharlal University. Professor Pandit was born in St. Petersburg in former USSR and educated in Chennai at the Presidency College and completed her both BA and MA. And she was a topper and gold medalist. And she completed her MPhil and PhD in international politics from School of International Studies, JNU, and postdoctoral in peace and conflict studies from Uppsala University, Sweden. She started her academic career with Goa University as assistant professor and later joined University of Pune in 1991. She has many books and articles to her credit. She is currently the president of Indian Political Science Association and executive members of many academic bodies like ICSSR, ICCR, Indian Institute of Advanced Studies, and many other institutions. And she has a command over Telugu, Tamil, Marathi, Hindi, Sanskrit, English, and she can also understand Kannada, Malayalam, and Konkani language. So I welcome all the panelists, dignitaries on the dais. Welcome, sir. Welcome, ma'am. I would like to request the Sutradhar, the curator of this conference, Professor Shri Prakash Singh ji, Director South Campus, to felicitate our esteemed guest, Professor Shri Prakash Singh ji. First to our chairperson, Sachidanand Joshi ji. Dr. Sudhanshu Trivedi ji. Professor Shantishi Pandit ji. Now I hand over the dais to our chairperson, Sachidanand Joshi ji, to take it from here. Thank you. नमस्कार एंड आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। और मेरे दोनों तरफ दो ऐसे धुरंधर विद्वान बैठे हैं जिसमें अध्यक्ष का बोझा बहुत कम हो जाता है।
इसमें अध्यक्ष को कुछ भी नहीं करना है दरअसल, सिवाय इसके कि मैं सूत्र में ये कहूँ कि इसके बाद ये और इसके बाद ये। मैं नहीं समझता कि भारतीय परंपरा में लेडीज फर्स्ट है कि नहीं। अंग्रेजी में लेडीज फर्स्ट है। तो मैं आदरणीय शांति श्री पंडित जी से आग्रह करूंगा कि वे सबसे पहले सदन के सामने अपने विचार रखें और एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। Respected Chairperson, Dr. Sachidananda Joshi ji, Dr. Sudhanshu Trivedi, my co-panelist, respected Vice Chancellor, who is very dynamic, and I congratulate this university for completing a centenary and all the great better going. We are not competitors, we are collaborators. Professor Sri Prakash Singh ji, Professor Dr. Swadesh Singh ji, and ladies and gentlemen, faculty, students, I'm very happy to be here this morning to especially speak on the topic of cultural nationalism and maybe give it a more all India perspective, because I hail from one of the marginalized regions of the country, that is the South, and from the state of Tamil Nadu, even Andhra Pradesh I can claim, and also Maharashtra. So here my idea when we are talking, the topic of the entire seminar is extremely important, because revisiting the ideas of India from Swaraj to New India will bring in new Indic narratives. And I think it is very important for both DU and JNU, one of the country's most premier universities, to debate this narrative and bring in new ideas, both at the level of faculty and students. I would begin with saying reducing India to a civic nation bound only by the Constitution disregards its history, our ancient heritage, culture, and civilization. I would place India as a civilization state. Please understand that there are only two civilization states in the world that has had tradition with modernity, realm with region, change with continuity, and those two states are India and China. And we have entered the fourth industrial revolution. So this means there's something unique about the civilization. And this is what I want to state, that it is not just a view from one part of the country. There have been writings since immemorial where you have this concept continuously being narrated. And it is very important for us that in a seminar like this, we revisit them. If we see, it predates the freedom struggle, it predates the arrival of those who eventually made India their homeland. Celebrating history beyond religion is very important. Challenge of a distorted history, distorted both, because history is his story. I think the her story also has to come. And the overturning of E.H. Carr's dictum, facts are sacred, interpretations can vary. Unfortunately, independent India, and to a certain extent, the university I belong to, overturned this dictum. Interpretations are sacred, facts can vary. And this is very dangerous. And that is why in a civilization that preached Ekam Sat Vipraha Bahuda Vadanti, that truth may be one, but there are different parts to it, is a basic essence of celebration of diversity, dissent, difference, as well as democracy. So if we see what has been the narrative, why are we today trying to re-emphasize a point? It's because we are made to imagine our history with self-loathing, self-hatred, and a land of the conquered and the defeated by invaders.
one period is excessively glorified. And I, who come from the South, feel even worse. The longest ruling dynasty in India have been the Cholas, who ruled this country for 2000 years. Any mention, any road in the name of any of the great kings of the Cholas? Not one in Delhi. So I really feel feeling that there is a huge bias, agenda setting, as well as gatekeeping. And it is extremely important that we revisit these ideas and look into the gaps. As most of you know, India is not a post-independent idea of a nation. The Rig Veda defined the geographical existence of Bharatavarsha as well as the Sapta Sindhu, a land encompassing 7 principal rivers. The Vishnu Purana deciphers the geographical location of the Bharatvarsha. Composed in 2nd century BC, it says the land that lies north of the ocean and south of the snowy mountains is called Bharata. And there dwell the progenies of Bharata. The word Rashtra is not something that has come in today. It is something that was used in the Rig Veda, the Yajurveda, and the Atharva Veda. Rashtra as a people living in a definite territory who accept the preeminence of knowledge and respect the person learning as well equipped and protecting their country from foreign invasion or internal or national or natural calamities. So Rashtra is not only a merely geopolitical concept, it is also a civilizational concept. It is a kind of thought which mystically keeps a patriot in a frame of mind to transcend all material and immediate interests and protect the motherland from all odds and calamities, aggression and evils. The love for the country is not the same as nation and self-determination, sovereignty, or even structuring a composite culture. Rashtra Bhakti is a subconscious feeling of being an Indian or a person belonging to this great civilization. Unlike the Abrahamic religions, Hinduism is not a proselytizing or a structured religion of one book and one God. We are a process. It's a way of life. So when we compare, you're comparing two unequals. As most of us know, Robert Frickenberg, the famous American historian, called the Indian national movement also as a Hindu revivalist and modernist movement. He quoted Bankim Chandra Chatterjee with his Vande Mataram, Swami Vivekananda, Swami Dayananda Saraswati, as well as Sri Aurobindo and Sarvepalli Radhakrishnan, who redefined Hinduism in modern terms. So cultural civilization is only a civilizational perception, a sense of belonging and anchoring in a specific cultural and civilizational milieu. And this is very important because when China does it, it's very secular. When India does it, it's communal. This type of argumentation doesn't work in academics. And I would like to here go to some of the thinkers whom I thought were less stressed. I would start with Maharashtra and go downwards. Most of you have heard the name of Bal Gangadhar Tilak and his book, The Gita Rahasya. A few ideas on it. Tilak was the first to say, Swaraj is my birthright and I shall have it. He infused the spirit of political assertiveness and patriotism, both of which is extremely relevant today. And among the people of the country, through aggressive nationalist policies, to inject the spirit of nationalism and awareness among the people, he started the Ganesh festival and the Shivaji Mahotsav, instrumental in bringing people together without caste or creed. And I would call him the first mass leader before Mahatma Gandhi. Many people think Mahatma Gandhi is a disciple of Gopala Krishna Gokhale. I would rather say he's a disciple of Lokmanya Tilak. Why?
because he used similar symbols to bring in a mass movement like Satyagraha and Ram Rajya. So I would see Mahatma Gandhi from the Tilak perspective. And if we look at Tilak, both Tilak and Gandhi were greatly influenced by the Bhagavad Gita. And in the Bhagavad Gita, they saw it as an instrument of karma yoga rather than just bhakti yoga. So I would recommend all young political scientists who are looking for narratives on cultural nationalism to read this book of Lokmanya Tilak on the Gita Rahasya, because here he draws the threefold distinction made in the Gita as well as in other Hindu texts, that between three different ways of moksha, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, and Karma Yoga, the paths of knowledge, devotion, and action. Since all the three elements are clearly present and endorsed in the Gita, Tilak cannot dismiss any of them, but rather he has to configure the relation between them, such as renunciation is foreclosed as a conclusion. He is not alone in the endeavor. The latter 19th and 20th century was replete with efforts by nationalists seeking by different means to arrive at a similar conclusion. Most of us know Bankim Chandra Chatterjee did so by equating bhakti with karma yoga. Karma means the performance of only those acts that comprise our duty. And duty in turn comprises only those acts that are dedicated to the Almighty. Act in the belief and that all acts are his. So if you see this whole thing, he used the Gita to infuse patriotism, that to aggressive patriotism among the people, not only in Maharashtra, but India. But unfortunately, we had an interpretation calling these great leaders extremists. They were not extremists, they were revolutionaries. I think it is very wrong to use such epitaphs for people. The next I would like to bring in is the idea of Gopalakrishna Gokhale. Yesterday only I was talking about dynastic politics. I said the model or paradigm that you can think of is his starting of the Servants of India Society. I don't know if most of you know, Gopalakrishna Gokhale was instrumental. He said politics should be a service and not a profession. And I think it is this aspect that we have to bring in. And you as young scholars, please start using these narratives which are available in the writings of many of the Indian freedom fighters. Unfortunately, the school which began in my university also interpreted only one family as the history of India, modern India. We have forgotten all these great nationalists who existed. I'm going to the more marginalized areas, and that is to Tamil Nadu and Andhra Pradesh. You had Subramanya Bharati, known as Mahakavi Bharati to Tamil speakers for his outstanding contributions to nationalism and to Tamil literature. He died on 11 September 1921 at a very young age. A passionate freedom fighter, social revolutionary, mystic and visionary, who was active during the late period of the British rule. He spent much of his all too brief life exiled from British India in neighboring Pondicherry, just like Sri Aurobindo. He died suddenly in 1921. He was just 38 years old. He had little opportunity to provide for his legacy, literature or otherwise. And if we look at his writings, please understand that he talked about the intangible cultural heritage of India and the unity of this culture. The writings destroy all ambiguity. He clearly said that clarity of mind is very important, and he thought that all languages and literatures of India have a single origin. And this, if you see, Bharati was a genius. He was also ahead of his time. He also spoke about women's liberation. Many people believe that feminist or women's rights movements began only with Marx and ended there. I'll tell you, the first feminist is Draupadi and Sita. Who could be more
greater feminist than what Draupadi asks her husbands in the Mahabharata. Or even Sita as the first single mother. See, this whole concepts are not an invention of the West. So one thing, it's very important for us to go into this. And the other is Subramanya Shiva. I'm just mentioning the names because of paucity of time. And the two Telugu writers called Dugirala Gopalakrishna, who said that a nation is not its sand or mud, but its people. And Kandukuri Veerashalingam, who was also like Ishwara Chandra Vidyasagar, a great reformer from the South. Now, finally, I would like to end with what I call our nationalism, cultural nationalism is as old as our civilization. I would like to quote from the Sangam literature and from the Cholas in the South, quoting the great writer Ananda K. Kumaraswamy. He said, the highlight of the Indian civilization is the dance of Lord Shiva. In its ancient form, the Ante-Sheshan worshipped Shiva and prayed above all things for the boon once more to behold the mystic dance. Shiva promised that he should behold the dance again, and in the sacred Tillai, the center of the universe. The dance of Shiva in Chidambaram, which is the only temple that has the Nataraja avatar of Lord Shiva, or Tillai forms as we call it, the motif of the South Indian copper images of Sri Nataraja, the Lord of Dance. These images vary amongst themselves in minor details, but all express one fundamental conception. Our Lord is the dancer who, like the heat latent in firewood, diffuses his power in mind and matter and makes them dance in their turn. The dance in itself represents the 5 activities, what we call the Panchakriya. And I would tell most of you that you can make several theories from this Panchakriya. What first is the concept of Shrishti, overlooking creation, evolution. Second is the concept of Sthiti, preservation and support. Then Samhara, destruction and evolution. Look at Ukraine. You can have this theory of destruction as well as evolution. And the Tribhuvat, veiling embodiment, illusion, and also giving rest. And Anugraha, release, salvation, and grace. These separately considered are the activities of the deities of Brahma, Vishnu, Rudra, Maheshwara, and Sadashiva. The cosmic activity is the central motif of the dance, Ummai Vilakam. Verse 36 tells us, this is from the Sangam literature, which is much older than many of the things, which was in Madurai, which was thought to be the Kumari Kandam, which we thought has got separated into Australia and other parts. So creation arises from the drum. Protection proceeds from the hand of hope, and fire proceeds destruction. The foot held afloat gives release. So if you see very clearly, it is here that we look upon this legendary argument about Lord Shiva's dance as highlighted of the Indian civilizational trait of the Cholas. If most of you saw, the Cholas occupied the Indo-Pacific called the Sri Vijaya and the Suvarna Bhumi. They defeated the Chinese, and it is the image of Lord Shiva that was their ascendant or their ruling symbol. And we don't even know much about this civilization. I think most of you in North India, it must be news when. So if we see from all this, can India become a norm builder? The next question and the last question I pose before you is, when you are a civilizational state, it is expected that we build narratives which can become norms in international relations, in all aspects of life. If you've seen the Cholas conquered, they did not do it by genocide, rape, or loot. It was more by culture, trade, and commerce.
So if you see, you have an alternative paradigm where you have this. So finally, I would only like to end saying that when we talk of cultural nationalism, it should help us to define certain very important, identifying characteristics that we need to be a norm builder. A shared value system which includes the acceptance of international norms. Yes, we don't believe in loot, genocide, or rape. We believe in trade and commerce and culture. To the existence of institutional mechanisms for the resolution of conflicts. Most of you know our democracy is much older. The British did not give us democratic values. Then Burma, Myanmar, Pakistan, all countries ruled by British colonial power should have been democracies. India is a democracy because it has a political culture. A culture that can choose from 3,000 crores of gods. What more diversity would you require? Diversity is our strength, and let us celebrate it. The more diffuse nature of political power in liberal democracies, making it difficult to sustain military conflicts. Please understand, we are the only country that has sustained our oasis of democracy in the third world. Most countries have given up democratic values in our region, and even in what we called earlier the third world or the developing world. So here, basically, I would say India's contribution to multiculturalism and cultural pluralism is extraordinarily important. And it is here that we have also the world-centric paradigm against the state-centric paradigm of Vasudhaiva Kutumbakam. And we also believe in a nature-centric paradigm, not an anthropocentric paradigm. We believe that human beings are a part of the cosmos where every other living, non-living thing has equal space and their function that has been created for them. And finally, if you see, we also have the Buddhist philosophy. Lord Gautama, the Buddha, was the first dissenter, and we celebrate dissent. Buddhism is a religion of the middle path, and India has always believed in the middle path and non-attachment as major. And all of you know that Adi Shankaracharya, through Advaita, brought back these ideas into the Indian philosophy. And finally, I would say at one point, 2000 years ago, Tamil was the lingua franca of traders across Southeast Asia. They were not Indian colonies, but proto-states that took on the Hindu apparatus of religion and concepts of kingship to enhance their position and status. While communities of Indian traders settled in important ports along Southeast Asia, they never crossed the line into becoming colonizers. This is very important. This is our civilizational thing. We never colonized anybody. What happened instead was the local rulers imbibed the Indian traditions. So with these few words, I would like to finally end my speech saying that Indian cultural nationalism is on a path that is very different from that of the anthropocentric, or the Abrahamic religions. So whenever we talk of the Indian civilization, it is something that that celebrates development, democracy, diversity, difference, and dissent. Thank you. Jai Hind. Namaskar. Thank you very much, Professor Pandit. It has been really thought-provoking. And as you rightly said, celebrating history beyond religion is very important. We must also understand that Rashtra is a civilizational concept. She also, in a way, sort of tried to establish that Mahatma Gandhi was more follower of Tilak than Gokhale, which is very interesting and important and really thought-provoking. We must think over it. And she was also saying that Draupadi and Sita are the biggest examples of feminism. From Subramanyam Bharati to Anand Kumar Swami, and all the great thinkers of India have been expressed in her erudite talk.
And again, she poses a question, can India become a non-builder, which is very important. Why I am again repeating all this is that after the talks of both these speakers, we'll have a brief session of Q&A. So you should be ready with your questions. And I would most humbly say that questions should be questions. I know you all are very intelligent and knowledgeable. Don't try to express your knowledge, but if you have any question, you must ask. Now, without wasting much time, I would request Dr. Sudhanshu Trivedi ji to come on the dais and speak about his idea on being Hindu as a Bharatiya. Respected Chairperson, Dr. Sachidanand Joshi ji, Professor Shanti Shri Pandit ji, Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh ji, and all respected faculty members, students present in this hall. I would like to start as when our chairperson has initiated his first statement, when he called Professor Shanti Shri that it is considered ladies first. But I would like to connect my topic as she has already given an elaborate description about cultural nationalism. So cultural nationalism emerges from the basic fundamental idea, ethos, and way of life of India, that is Hinduism. And from there, I want to connect. Hinduism is a word which is heard a lot, but understood a very little, rather than misunderstood a lot. And in any idea, whether religion or concept, the height of any religious, conceptual, dharmic idea is the concept of God. And I can say with firm conviction that in all other civilizations of the world, in all other nations of the world, in all other religions of the world, the God is only masculine. There is no feminine element in the God. But in India, in Hinduism, we are having the concept of Ardhanarishwar. And it is not just as if the 50% representation has been given. The relation has been also been defined. As Kalidas in the Raghuvansh first shloka has said, Vagarthami samprakto vagarthami pratipate jagatah pitaro vande parvati parameshwar. अर्थात भगवान शंकर और पार्वती के मध्य का अर्धनारीश्वर स्वरूप उसी प्रकार से संपृक्त है, यानी जुड़ा हुआ है, जैसे शब्द और अर्थ से मिलकर कविता बनती है। ना अकेले शब्द से कविता है, ना अकेले अर्थ से कविता है। और इसे ही हिंदी के प्रख्यात कवि निराला जी ने कहा था, इसी भाव को, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। So you can understand. And now he said that the ladies should be first. अरे साहब, हमारे यहाँ इक्वलिटी नहीं है, फर्स्ट है। इसीलिए सीताराम, सीता पहले राम बाद में, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, राधे श्याम, माता पिता। Now I will come to the substantive point. Why I have said it is most misunderstood? Because if anybody considers at all it is a religion, then it is the only religion in the world which allows discussion on its religious texts. As yesterday, Honorable Home Minister has said कि विश्वविद्यालयों को विचार प्रवाह का साधन बनाएं, विचार का अखाड़ा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम एकमात्र धर्म जहां वेदों में शास्त्रार्थ की परंपरा है, इन ऑल एनी अदर रिलीजन इट्स ओनली सरमन प्रीसेप्ट, जो कह दिया गया सुन लो, इधर उधर की बात कही तो नर्क में जाओगे, और कहीं तो कह दिया गया सर काट दिया जाएगा। मगर हमारे यहाँ कहा गया इट्स ओपन टू डिस्कशन, यू कैन हैव ए ओपन डिस्कशन एंड देन यू फाइनली कंक्लूड। एक ही कॉन्सेप्ट ऑफ वेद में शंकराचार्य का एक अद्वैत का इंटरप्रिटेशन है, तो रामानुजाचार्य का द्वैत का दूसरा इंटरप्रिटेशन है, तो निम्बार्काचार्य का विशिष्टाद्वैत का तीसरा इंटरप्रिटेशन है। एंड यू नो देयर आर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस हैं, गार्गी मैत्री कॉलेज, there are more than 22 women commentators on Vedas. And not only this,
याज्ञवल्क्य का गार्गी के साथ शास्त्रार्थ और संध्या का मेधातिथि के साथ शास्त्रार्थ, can anywhere you quote in the entire world that the woman has got the authority to discuss? First, it is allowed to have a discussion, and then the woman is allowed to have a discussion, that too with a religious sage. And not only this, the most commonly known shastrarth is a shastrarth between Acharya Shankar and Mandan Mishra. And who was the chief justice of that? Mandan Mishra's wife, Ubhay Bharati. Now I challenge, anywhere in the world you quote that the woman has got the authority not only to discuss but to become the chief justice on the discussion on a religious cause. Now I would like to come to subject of my field. अब मैं आपसे कहूं कि अगर आपसे पूछें कि साहब हिंदुइज्म में ऐसा क्या है जो कहीं नहीं लिखा, जैसे मैंने बताया कि वुमेन की इक्वलिटी की बात, चलिए आप कहेंगे कि इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता किसी ने लिखा हो. But I would like to ask, if I ask you, there are certain 2-3 things जो लिखी नहीं है कहीं. पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों को ऐसी एजुकेशन दी गई है, if I ask you कि हिंदुइज्म की कुछ कमियां बताइए तो हमें फटाफट ध्यान आ जाती है. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है, कास्टिज्म है, ये है, बैकवर्डनेस है, अनसाइंटिफिकनेस है, वगैरह वगैरह. एक का तो फैक्ट मैंने बता दिया. अगर वर्चूज पूछी जाए तो शायद हम 2-3 पर भी अटक जाते हैं. अब मैं आपसे पूछता हूं ऐसी कोई चीज जो हमारे यहां लिखी है और दूसरी जगह लिखी ही नहीं. दैट इज ऑल यू हैव हर्ड अबाउट वैदिक मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट. हैव यू हर्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड? Ayurveda, medical science, part of Vedas. Medical science as a part of the sacred religious texts. ये सिर्फ हमारे यहाँ है और कहीं नहीं. Not only this, I would like to remind, अभी अभी हमारा न्यू ईयर गुजरा तो 2021 है, किसी का 1400 है, हमारा विक्रम संवत 2071 है, युधिष्ठिर संवत 5100 है. बट आपको पता है कि ब्रह्म संवत 1.97 बिलियन ईयर्स का है. मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, 1,97,40,28,000 कुछ सौ. एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई वुड लाइक टू कोट, यू नो विच इज द फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट विच हैज ट्रेवल्ड अक्रॉस द सोलर सिस्टम? इट इज वॉयेजर, विच वॉज सेंट इन 1978. एंड देयर इज ए entire thing printed on that Voyager for extraterrestrial civilization. There is a message which is being printed, typed, and recorded. If any extraterrestrial civilization comes in contact, they should know, they may be able to know what the earth is and what others is. And who has designed that message? The name of the cosmologist is Carl Sagan. And you can go and check, and Carl Sagan has said only the calculation of the ancient Hindus matches with the modern scientific cosmological calculations, because they taught about billions and others were not able to go beyond the 1,000. और इतना ही नहीं है, अभी प्रोफेसर साहब ने बहुत उल्लेख किया कि शंकर जी का किस प्रकार का प्रभाव था दक्षिण भारत से लेकर आगे तक. और इस समय तो शंकर जी वैसे भी बहुत चर्चा में है. और मगर उनका महत्व कहां और किस प्रकार से है? As she has elaborated about the cultural nationalism, when you bow your head to Kashi Vishwanath, your point of devotion connects to Rameshwaram in extreme south, Amarnath in extreme north, Somnath in west, Mallikarjun in east, and not only this, Pashupatinath in Kathmandu and Katasraj in Pakistan. So irrespective of whether it is in any part politically controlled by anyone, and not only this, the biggest scientific discovery of 21st century, Higgs boson, which was commonly known as God particle, was developed in CERN laboratory. And in CERN laboratory, you will find the statue of dancing of Nataraj that is taken from Tanjavur, that is of Chola Empire. And Fritz Capra, Austrian scientist, has written in that this symbolizes that the perpetual creation and destruction of universe is like the cosmic dance of Shiva. वहां तक connect होता है.
और जाके देख लीजिएगा मंगोलिया में जितनी कब्रें हैं ना, इंक्लूडिंग चंगेज खां की कब्र पर भी त्रिशूल भी लगा है, डमरू भी लगा है। इफ आई आस्क यू कि उनके रिलीजन क्या था, तो कहते तेंद्रिन। अरे तेंद्रिन कुछ नहीं था, तंत्र का ही अपभ्रंश था, और तंत्र के देवता साक्षात शिव हैं। दैट्स व्हाई आई वांट टू से कि हाउ द थिंग्स आर कनेक्टेड फ्रॉम द साइंस। अब ये मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताता हूं कि हाउ द साइंस एंड अदर थिंग्स आर कनेक्टेड, जस्ट गिविंग टू एग्जांपल्स। इफ आई आस्क दैट व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, वेदास, हिंदुइज्म टू द साइंस, then at least one which is most widely accepted by even by the far left liberal or whatever you say is zero हमने दिया। They say that the zero was invented by Aryabhatta. If it is truth, तो ये बुद्धिज्म में शून्यवाद कहां से आया? तो आर्यभट्ट से पहले की बात है। अगर ये उतना बाद में खोजा गया जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भगवान राम की जन्म कुंडली बगैर जीरो के बन रही थी। कौरवों की 18 अक्षौणी सेना की गणना बगैर जीरो के हो रही थी। एक्चुअली में द इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट वी इन्वेंटेड जीरो। द इंपॉर्टेंट वेदों से निकला है, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट इट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम अ रिलीजियस टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट इज व्हाई वी इन्वेंटेड जीरो। हमने शून्य खोजा यह महत्वपूर्ण नहीं, हमने शून्य क्यों खोजा यह महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि जो मैथमेटिक्स आप में सब में पढ़े होंगे, if there is a number x divided by n, the resultant depends upon the value of n. When the value of n decreases, the resultant increases. x by 20 से x by 10 की वैल्यू ज्यादा है, x by 10 से x by 5 की वैल्यू ज्यादा है, और जब आप n की वैल्यू 1 कर देते हैं तो x by 1 is equal to x and x by 0 is equal to infinity. तो अनंत का रास्ता शून्य से होकर जाता है, और हम अनंत खोज रहे थे, इसलिए हम शून्य खोजने में सफल रहे। और ये कोई हमारी हाइपोथेसिस नहीं है, हमारे यहां, इसलिए मैंने कहा मोस्ट मिसअंडरस्टूड साइंस, जिसको आज आप कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट साइंस, इट इज अ वेस्टर्न माइंडसेट दैट द साइंस हैज टू बी इन कंट्रास्ट और कॉन्फ्लिक्ट विद रिलीजन। हमारे यहां दोनों एक थे, क्योंकि अगर शून्य हमने खोजा मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो हमारे यहां अध्यात्म में कहा गया है कि जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम, और घर अपनों है शून्य में अनहद में विश्राम। अब देखिए प्योरली स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाता है। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं। व्हेन आई वाज इन क्लास 11th, जो भी आप लोगों ने जिन्होंने भी साइंस पढ़ी होगी, तो फिजिक्स में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग जमाने में 11th 12th में ही पढ़ाया जाता था। अब सिलेबस में किस क्लास में पढ़ाया जाता है आई डू नॉट नो, बट इट सेज दैट इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन द स्पेस, then the simultaneous and exact determination of both the position and the velocity is impossible. क्योंकि जो सब एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल बहुत तेजी से बदलते हैं। मैं उसको आपको एक नॉर्मल वे में एग्जांपल देता हूं कि अगर ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और आप चाहेंगे कि मैं इसकी एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमिन की, तो किसी के रेफरेंस में करेंगे ना। इफ यू टेक द रेफरेंस अर्थ एज अ रेफरेंस, बट अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, बट एट द टाइम ऑफ योर टेकिंग द रीडिंग यू विल एज्यूम दैट द अर्थ इज स्टेशनरी। तो क्या होगा? पोजीशन में त्रुटि आ गई। और अगर अर्थ को आप मूवमेंट टेक इनटू अकाउंट करेंगे तो वेलोसिटी में त्रुटि आ गई। तो साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी इज इम्पॉसिबल। अब उसी में हम हिंदी में पढ़ते थे, तो एक बिहारी का दोहा था, जगत जनायो जिह सकल तो हरि जान्यो नाही, जिन आखिन सब देखिए आंख न देखी जाए। यानी संपूर्ण विश्व का ज्ञान जो ईश्वर कराता है, कभी आप उसको देख नहीं पाते। जैसे आंखों के द्वारा आप पूरे जीवन में संसार में सब कुछ देखते हैं, और अपनी आंखें आप कभी नहीं देख सकते, आंख का प्रतिबिंब देख सकते हैं। So the thought emerged in my mind that the simultaneous and exact visualization of the scene and the apparatus is impossible. Then मैं सिलेबस से बाहर आया, और उस समय थोड़ा बहुत वेदांतिक फिलॉसफी पढ़ते थे, और उसमें कहा गया है कि हमारी चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। हम अपने पूरे जीवन में 3 ही अवस्थाओं में जीते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। तो जब आप सपने में होते हैं तो रियल वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जब आपको सपने में लगता है शेर ने मुझे पकड़ लिया, तो आपको लगता पकड़ ही लिया। और जब आंख खुलती है तो आपको लगता आप ही की चेतना थी, वहां ना कोई शेर था ना कोई जंगल था।
तो द साइमल्टेनियस एंड एग्जैक्ट रियलाइजेशन ऑफ द ड्रीम इन द वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल। अब इसीलिए अब आप आइए, इस संसार में आपको दो एक्सट्रीम टाइप के लोग मिलेंगे। एक जो एक्सट्रीमली मेटरलिस्टिक है, कहां है भगवान, दिखाओ, कहीं नहीं दिखाई पड़ता, बकवास। और जिन्होंने सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया, दे हैव अटेन्ड द स्पिरिचुअल एलिवेशन, वो कहते कहां है संसार, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वो कहते उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। So the simultaneous and exact realization of the God and the world is impossible. और अब फिर आ जाइए हिंदी के ही कबीर दास के चैप्टर के एक दोहे पे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। Now the Heisenberg theory of uncertainty got completed. That the simultaneous and exact realization of yourself and God is not possible. उस समय मुझे लगा कि शायद मेरी एक एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज रही होगी, बच्चे के रूप में सोचा। बट आफ्टरवर्ड्स इन 2005 and 6 आई केम अक्रॉस ए बुक। आपने बड़ी फेमस बुक का नाम सुना होगा, द ताओ ऑफ फिजिक्स, रिटन बाय फिट्जे कैपरा। उन्होंने एक दूसरी किताब लिखी, द अनकॉमन विजडम। इन अनकॉमन विजडम ऑन पेज नंबर 41-42 ही राइट्स दैट इन द लास्ट डेज ऑफ वर्नर हाइजेनबर्ग, ही मेट हिम इन म्यूनिक in April 1972. And as per Fitzgerald Capra, Heisenberg is telling, इसमें इंडियन कहीं नहीं है, he said that in 1929 he came to India, had an elaborated discussion with Gurudev Rabindranath Tagore on the deep aspects of Vedantic philosophy, and Heisenberg says that the entire concept of interconnectedness, relativity and uncertainty, which I was unable to comprehend, I got a final vision and concluded it. इसमें कोई इंडियन नहीं है, बुक भी ऑस्ट्रियन राइटर की है, कोट जर्मन राइटर को कर रहा है, और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दिस गिव्स एन एग्जांपल कि हाउ द थिंग्स आर एम्बेडेड। नाउ पॉलिटिकल साइंस की बात है, तो आप पॉलिटिकल की बात ना हो तो ये भी नहीं समझ में आता है कि हाउ हिंदुइज्म अफेक्ट्स द पॉलिटिकल साइंस और द पॉलिटिकल एस्पेक्ट। When भगवान राम conquered लंका, आज की डेट में क्या होता है, एनी कंट्री wants to annexation और subjugation और domination, बट उन्होंने क्या annexation किया? नहीं। subjugation किया? Had he appointed any of his viceroy? No. Then domination किया? Has he asked कि हमको टैक्स देना शुरू कर दो? No. बस ये कहा धर्म की स्थापना करनी थी, वहीं के एक लेजिटिमेट हेयर को, उत्तराधिकारी को रखा, शुरू कर दिया। इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, इफ अ पॉलिटिकल सोल्यूशन कैन कम, इट कैन कम ओनली थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ विच हिंदुइज्म प्रोवाइडेड। अब आ जाइए पर्सनल लाइफ में। अब मैं कहना चाहता हूं कि पर्सनल लाइफ में जब आप देखते हैं तो व्हाट इज द पर्सनल एजेंडा? If you are believe in the Hindu philosophy, we are the only country in the world among all the major countries. आप लोगों ने सबने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, चाइना की क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, एकमात्र बड़ा देश है भारत जहां क्रांति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कारण जानते क्या है? कि हमारे यहां टारगेट बाहर जीतना ही नहीं था, हमारे यहां अंदर उतरना था। जैसे आपने मकर संक्रांति सुना होगा, मकर संक्रांति क्या होती है? दक्षिणायन से उत्तरायण जाता है, यानी फ्रॉम साउथवर्ड डाउनवर्ड यू गो अपवर्ड, दैट इज कॉल्ड संक्रांति। तो हमारे यहाँ क्रांति नहीं होती थी, हर व्यक्ति के अंदर संक्रांति होती थी, इसलिए हमारे यहाँ कोई रेवोल्यूशन नहीं। तो पर्सनल लाइफ में, पर्सनल कंडक्ट में ये हमारे यहाँ रहता था। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इफ आई आस्क, मैं एक एग्जांपल और बता दूं। Prior to 2014, when Amit Shah ji was General Secretary, I was on a TV debate, and one of our opponents said that today India is the youngest nation in the world. There is an aspiration of the youth who wants to attain the new technologies and want to make India an economic superpower. And you are talking about Ram Mandir? तब अमित शाह जी गए थे अयोध्या और राम मंदिर के संकल्प की बात करके आए थे। He said, where does Ram Mandir fits in the emerging
economic superpower, technologically advanced, youngest India of the 21st century. Then I said, we do not want to make India just economic superpower. We want to make India a world leader. And if you want to become world leader, then other than economic, military, and intellectual power, you must have certain set of values which are capable of inspiring the other world. Or forget about India. The highest set of values which a mankind has ever seen or ever envisaged, if it can be seen in one character, that is Bhagwan Ram. भाई भाई को मार के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा, दुनिया में कहीं राजा बन गया, तब तक गद्दी पे बैठा रहा, अब तक मर नहीं गया या मार नहीं दिया गया। और यहां पर भरत के खड़ाऊ रख के शासन करने का आदर्श, लक्ष्मण के वन जाने का आदर्श, पिता के एक वचन पे राज्य छोड़ने का आदर्श, क्या ये नहीं लगता है कि हाईएस्ट सेट ऑफ वैल्यूज है? दैट्स व्हाई 21st सेंचुरी का एमर्जिंग और ग्रेट इंडिया पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हम भारत को सुपर पावर नहीं बनाना चाहते। यही मैं फाइनली एंड में कंक्लूड करते हुए कहना चाहूंगा, वी डू नॉट वांट टू डोमिनेट द वर्ल्ड, बिकॉज डोमिनेशन के द्वारा आप किसी के माइंड को कंट्रोल करते हैं, उसकी फीलिंग्स को नहीं। सो वी वांट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। इसीलिए हम विश्व शक्ति नहीं बनना चाहते, जगत गुरु बनना चाहते हैं। क्योंकि जब आप सब गुरु की श्रेणी में आते हैं, व्हेन यू आर सिटिंग बाय द साइड ऑफ ए पावरफुल मैन, थोड़ा सा हेजिटेशन लगता है, थोड़ा सा ऑफुल लगता है, संकोच लगता है। व्हेन यू आर सिटिंग बाय द साइड ऑफ योर गुरु, आनंदित, उत्साहित और ऊंचा उठा हुआ महसूस करते हैं। गुरु के बगल में मोटिवेटेड महसूस करते हैं और पावरफुल के बगल में डोमिनेटेड। तो हम उस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड इट इज द ग्रॉसली मिसअंडरस्टूड एलिमेंट। एंड फाइनली एक पॉइंट और कह दूं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट दिखाने का प्रयास इंटरनल भी किया जाता है, एक्सटर्नल भी। जैसे दिखाने का प्रयास किया जाता है जैसे कि बौद्ध धर्म और सनातन धर्म में कोई मतभेद था। विद ड्यू ह्यूमिलिटी आई वुड लाइक टू आस्क, कहीं लिखा हुआ दिखाइए जहां भगवान बुद्ध ने कहा हो कि मैंने एक नया धर्म चलाया। धम्म चक्र प्रवर्तन के बाद अंतिम वाक्य क्या था भगवान बुद्ध का? एसो धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। यानी उन्होंने एक व्याख्या दी। तो बाद के इतिहासकारों ने उसको अपने हिसाब से, खासकर ब्रिटिश इतिहासकारों ने ऐसा बना दिया एज इफ इट इज ए कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिमागों में ऐसा भर दिया गया कि रोज रोज जब तक हम पूजा करते हैं उसमें भी एक चीज आती है और हमें समझ ही में नहीं आता है कि कैसा आपस में जुड़ा हुआ है। देयर इज अ फ्रेज यूज ना, मनुवादी हैं और हम बुद्ध के साथ हैं। ठीक है, तभी आपने ध्यान दिया है जब आप पूजा करते हैं तो पहले तो मैं ये बता दूं, जो कल्चरल नेशनलिज्म की बात की, पूजा में जब आप जल हाथ में लेते हैं तो क्या श्लोक बोला जाता? गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब बताइए, पूरे भारत की नदियों से कनेक्ट हो गए, वो सरस्वती जो अब हिस्ट्री में है और वो सिंधु जो ज्योग्राफी में हमसे बाहर है उससे भी कनेक्ट हो गए। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब वो टाइम ड्यूरेशन बोलना शुरू करता है तो क्या कहता है? श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे। मनु आ गए, वैवस्वत मन्वंतर है। श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलयुगे प्रथम चरणे बुद्धावतारे। फिर कहता अमुक नाम संवत्सर, अमुक नाम दिन, अमुक नाम नक्षत्र, अमुक नाम मुहूर्त। अब बताइए, मनु बुद्ध दोनों एक ही में हैं, मगर जबरन लोग लड़ाई लगवाए पड़े। सो फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद व्हाट प्रोफेसर शांतिश्री जी हैज सेड, और जहां से मैंने शुरू किया था, भगवान शंकर के ही एक स्वरूप अर्धनारीश्वर से। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारा स्वरूप जो है वो भगवान शंकर के ही उस स्वरूप से प्रेरणा लेता है, जहां सदैव विश्व को कंठ में धारण करके जगत के कल्याण करने का संकल्प है। तो यह पंक्ति कह के समाप्त करता हूं कि मैं मधु से अनभिज्ञ आज भी जीवन भर विषपान किया है, किया नहीं विध्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है। वनवासी हूं, दीन दुखी मानव के दिल में रहता हूं, सन्यासी हूं पर वैभव से दुनिया की झोली भरता हूं। शूल भरे कंटक पथ पर, लुटियंस डेली में तो यही है ना, शूल भरे कंटक पथ पर आजीवन अभियान किया है,
किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया है। और एक लाइन और जो हमको बहुत भुला दी गई थी, कि बहुत ज्यादा ही हमको शांति प्रिय बना दिया था, तो वो भी याद रखिए, प्रलयंकर हूं महाकाल बन पापों का अवसान किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का आजीवन निर्माण किया। धन्यवाद। बहुत सुंदर। धू धू धधक धधक कर धधकी क्रुद्ध चिताएं बल खाती थी, धधक रहा सारा यौवन था, धधक रही मेरी छाती थी। मुट्ठी भर अवशिष्ट भस्म से आजीवन निर्माण किया है, किया नहीं विध्वंस, विश्व का जीवन भर निर्माण किया है। सुधांशु जी ने बहुत सारी बातों को जैसे होता है ना कि अलग अलग स्तरों पर आपके सामने खोल दिया है। जैसे कि उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म इज द ओनली रिलीजन विच अलाउज डिस्कशन, एंड हमारा काम डोमिनेशन नहीं, हमारा काम मोटिवेशन है। तो ये बहुत सारी बातें आपने कही हैं, और डिस्कशन चूंकि कहा है तो डिस्कशन होना भी चाहिए, इसलिए स्वदेश सिंह जी यहाँ है। हम लोग प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं। So with the permission of chair, so this for next 10 minutes we will have question answer session. So if anyone has any question, so please raise your hand. The cordless mic will come to you. Anyone can start. Dr. Neena Banshal from Gargi College, Kamla Nehru College. नमस्कार सर। मेरा प्रश्न सुधांशु जी से है। सर, आपने जो शास्त्रार्थ की बात की थी, यही एक बार मैं क्लास में पढ़ा रही थी, तो मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी का जो शास्त्रार्थ होता है, उसमें फिर उनकी पत्नी भी कहती हैं कि मैं भी शास्त्रार्थ करूंगी। और बाद में जब वो थोड़े ऐसे प्रश्न पूछती हैं जिनका आभास शंकराचार्य को नहीं था, और फिर वो जंगल में जाते हैं, and he enters the body of a dead king. When I told this to the students, there was a repulse that was immoral, and how do you justify that? So I want the answer because I did not get the answer myself. आज टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आ गई है कि जैसे आपके हाथ में सबके मोबाइल है, तो मोबाइल इज अ हार्डवेयर, and any hardware has a supporting software, and software is have a connecting network. तो in the same manner हमारा शरीर एक हार्डवेयर है, हमारी कॉन्शियसनेस, मन बुद्धि चित्त अहंकार एक सॉफ्टवेयर है, और जिस ज्ञान से हम कनेक्टेड होते हैं वो नेटवर्क है। तो उनसे पूछिए कि भाई एक मोबाइल का सारा डाटा दूसरे में डालते हो कि नहीं, एक मोबाइल से दूसरे में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो कि नहीं। जब हैंडसेट पुराना हो जाता है, हार्डवेयर पुराना हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर दूसरे में ट्रांसफर कर लेते हैं, और जब सॉफ्टवेयर भी नया डाउनलोड करना होता है तो नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। तो आज की जनरेशन को तो मुझे लगता है समझने में और आसानी होनी चाहिए। इसीलिए जस्ट 50 इयर्स बैक जब ये कहा जाता था कि ये हिंदू समाज कितना मूर्ख है, कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना है तो गुफा में जाके ध्यान लगाओ। अरे हाउ इज इट पॉसिबल? इफ यू वांट टू एक्वायर नॉलेज यू शुड गो outreach, meet the people, study the situation, see the things, then you will be able to attain like what Darwin has done. पर आज तो आप देख रहे हैं ना कि आपको न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना है तो न्यूयॉर्क जाके पढ़ लीजिए या मोबाइल पे डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चों को ये समझ में आए कि आप सॉफ्टवेयर भी बदलते हो हार्डवेयर में, और सॉफ्टवेयर में नेटवर्क से डाउनलोड भी करते हो, तो अगर ये सूक्ष्म जगत में भी संभव है, सिर्फ स्थूल जगत में नहीं, तो इसलिए इसमें कोई इमोरल जैसी चीज नहीं थी, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर अलग सुरक्षित था। आपने जाके उस सॉफ्टवेयर से एक जानकारी ली और वापस अपने ओरिजिनल हार्डवेयर में आ गए। Yeah. Any other question? कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जी। अलीशा धिंगरा जी। Good morning, everyone. I have a question to Professor Antishri Pandit. Ma'am, your observation regarding Sita as the first single mother is very intriguing and very interesting. So I would like to hear your views about Sita's Agni Pariksha. How do you interpret this?
See, basically what I would tell you is you cannot put today's values into a period where values were very different. First, my answer. Second is, even if you do so, are today's feminists even more radical than Draupadi? Is the next question I'll ask you. Because the question she asked her husbands after the loss of the dice game, I think no woman today even has the courage to ask for it. You go to a court, but she asked it. And she also she never cooked. Do all of you know in Mahabharata, Draupadi never cooked. It was Nala Bhima Pakam, meaning her two husbands, Nala and Bhima, cooked. Who can be more radical? I don't think the Western feminism is very primitive. They were picking up stones when we were already a great civil. Sita Agni Pariksha, if you want to say, see, she also went through she was the mother who raised her own children, right? Because for Lord Rama, it was more important to be a king than a husband. You can question that value, but it was a value that was respected in that period. And I think finally, okay, there are feminists who say even Ram should have gone through an Agni Pariksha. But that is not the question. The question is finally Sita refused to go back and stood up for her self-dignity and got consumed by Mother Earth. You know, Mother Earth was her mother. So this is, if you see to a large extent, more equal than what we see today. So I would really say that, are all the feminists who are fighting for women's rights perfect? I don't think. They have a lot of imperfections. So the question is, when we judge, we have to be very careful that we don't take today's values, today's debates into a period when these religions and these ideologies did not even exist. So I would say, as a contemporary, social scientist or anybody, please put the ideas in a proper framework. I'm only asking you to take narratives, because I know all Center for Women's Studies, both in DU and JNU and other universities, our inspiration is only from Karl Marx, not beyond that. Oh my God, is very recent. Are you saying civilizations earlier had no respect for women, no values for women? This is what I'm trying to say, that we as Indians have to go back to our civilization. See, today our universities have become factories of imitating knowledge. The Western ideas we pick up and make pink buckets, yellow buckets, mugs and others. There is no originality. Originality comes only when you go into your cultural traditions, your mores and this. And civilization has nothing to do with religion. So let us also understand that the Indian interpretation of religion is very, very different from the, binary. All of us want to look in binaries. If there is God, there is Satan. But in Hinduism, you have shades of gray. How would you look at a character like Ravana? He was not a villain. He was an anti-hero, the greatest bhakta of Lord Lord Shiva. Especially the Shiva Tandav Stotra, which every day I hear, is written by him. So beautiful and so melodious. So my contention is, Indian civilization or even the Chinese civilization and other civilizations cannot be interpreted by a very narrow binary framework. Please go beyond it. It is more like a concentric circle framework. Can we evolve it? You are great social scientists here, great university, please do it. I would like to add to this. The problem is interpretation. We are open to interpretation, but without reading, interpretation हो जाता है. मैं ये बात सबके लिए कहना चाहता हूं. कभी आपने सोचा है कि सीता का अर्थ क्या है, राम का अर्थ क्या है, रावण का अर्थ क्या है, रावण के 10 ही सिर क्यों हैं, 15 या 20 क्यों नहीं है, सीता का वो हरण क्यों कर रहा है, और सीता का हरण में सिर्फ सीता की छाया का हरण क्यों कर पा रहा है? ये कहानी नहीं है, बहुत इसके अंदर डेप्थ है. देखिए, सीता वर्ड का अर्थ होता है धरती.
राम शब्द का अर्थ है रम धातु से बना, रमन्ते इति रामः, द एलिमेंट इन विच द एंटायर यूनिवर्स इज बिहेल्ड। और रावण ने सीता का हरण क्यों किया? रावण जानते क्या है? रावण के 10 सिर काहे हैं और एक सर कटता दूसरा क्यों उगाता है, और भगवान भी उसको रोक नहीं पाते हैं। ये सारा हमारा कॉन्शियसनेस का एक एग्जाम्प्लिफिकेशन है। 10 की संख्या, इस अगर 10 ही सर है मान लीजिए, तो उसको 10 शीश, 10 ग्रीव, 10 कंधर, 10 उदर क्यों नहीं कहते? दशानन क्यों कह रहे हैं? 10 मुख वाला। 10 की फिगर का अर्थ है 10 इंद्रियां हैं, एंड दशानन मतलब 10 इंद्रियों का खुला हुआ मुख, द एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। ये दिल मांगे मोर, ठीक। और एक सर कटता है दूसरा उगाता है, यू फुलफिल द डिजायर ऑफ एनी वन सेंसेस, इट विल इमीडिएटली गेट रिप्लेस, गॉड कैन नॉट स्टॉप। अब आप यूं समझिए, वो सीता हरण क्यों करना चाह रहा है? जानते क्या है? सीता राम की कोई कहानी नहीं है कि राजा रानी है। राम रिप्रेजेंट, जब यूनिवर्स शुरू हुआ उस समय जो एब्सोल्यूट एलिमेंट था जिसमें पूरा यूनिवर्स सेटल है, वो राम है। और जो फर्स्ट एनर्जी क्रिएट होती है, आदि शक्ति, जहां से क्रिएशन शुरू होता है, वो सीता है। और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा रामचरितमानस में पढ़िए, उसमें लिखा जब सीताराम का विवाह हो रहा, वो कहते विवाह थोड़ी हो रहा है, ये तो अनादिकाल से साथ में है। अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी, ये तो सदा सर्वदा से इनके साथ है। अब क्या होता है, रावण रिप्रेजेंट्स द मेटीरियल पावर, यानी उस शक्ति से क्रिएट हुए यूनिवर्स की इंटरनल पावर। ये सोचती है कि मैं यूनिवर्स की ओरिजिनल पावर को कंट्रोल कर लूंगा, तो कंट्रोल कर नहीं सकता, सिर्फ उसकी छाया को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए वो 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट कौन करेगा? राम। राम के पिता क्या नाम है? दशरथ। जब 10 इंद्रियों को रखने की क्षमता आएगी तो 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा को नष्ट करेंगे, और वो जो एब्सोल्यूट एनर्जी को यूसर्व करने की कोशिश की थी उसने, उससे मुक्ति कराएंगे। और जब 10 इंद्रियों से आप मुक्त होते हैं तो कहां जाते हैं? चिता में जाते हैं? नहीं। एक्चुअली में क्या होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, नॉट टू टेकन अदरवाइज, जैसे मैं ये कहूं, नमक होता है, सॉल्ट, इसका केमिकल नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। Na फॉर सोडियम, Cl फॉर क्लोराइड। अब किसी ने केमिकल नॉमेनक्लेचर ना पढ़ा हो और NaCl पढ़े, फिर उसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखे नेकेल, अच्छा नेकेल तो कोई वर्ड नहीं होता, इसका मतलब या तो नेकलेस होता होगा या निकल होता होगा। फिर जो हमसे इंटरप्रिटेशन की गलतियां होती हैं, या हम ऐसे कहें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े बगैर हम इंजीनियरिंग को इंटरप्रेट करने लगे, जूलॉजी बॉटनी पढ़े बगैर मेडिकल को इंटरप्रेट करने लगे। तो मेरा ये अनुरोध रहता है कि एक बार फर्स्ट हैंड पढ़िए और क्लासिकल ढंग से पढ़िए। जैसे फिजिक्स आप स्कूल में एडमिशन लेके पढ़ेंगे, फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करके पढ़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट फिजिक्स इज, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इंजीनियरिंग इज। क्लासिकल पढ़िए, सबकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए, राम 4 भाई क्यों थे, दशरथ के 3 रानियां क्यों थी, सब इतना समय नहीं है व्याख्या करने का। हनुमान बंदर क्यों थे, बाल ब्रह्मचारी क्यों थे, हर चीज का एक मीनिंग है। देन यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट द रियलिटी इज। Thank you. So last question for this session. Last question for this session, Professor Makhan Lalji, Senior Fellow, Nehru Memorial, and he is also one of the plenary speaker today. नहीं, मैं प्रश्न तो नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय और दोनों विद्वान वक्ताओं की परमिशन के साथ एक छोटी सी बात और क्लेरिफाई करना चाहता था। मंडन मिश्र उनकी पत्नी के संवाद के बारे में सुधांशु जी ने बहुत सुंदर ढंग से मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न आइडियोलॉजी में उसे समझा दिया, लेकिन मैं वापस वहीं जाऊंगा मंडन मिश्र की पत्नी के पास और 11-12 वर्ष के शंकराचार्य के पास। आपने सही प्रश्न पूछा, विद्यार्थियों की जिज्ञासा भी सही है। होता यह है कि मंडन मिश्र की पत्नी खुद जज हैं, और जब उनके पति हार जाते हैं तो पत्नी के लिए ये बहुत व्यथा की बात होती है कि उसका पति हार गया, और वो भी वो खुद जज थी। तो वो कहती है कि ठीक है, मंडन मिश्र हार गए आपसे, अब आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। शास्त्रार्थ शुरू होता है, एग्जैक्ट बात आती है पति पत्नी के संबंधों पर, और तरह तरह के संबंध होते हैं पति पत्नी के बीच में। तो जब यौन संबंध के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो शंकराचार्य कहते हैं हाथ जोड़ के, पैर छू के, माँ मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं तो कभी पत्नी को सिवाय माँ और बहन के अलावा देखा ही नहीं, तो मुझे इस संबंधों के बारे में कुछ नहीं पता है। तो मंडन मिश्र की पत्नी कहते हैं नहीं, संवाद होता है, आपको जवाब देना पड़ेगा। तब वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की बात उन्होंने कही। योग की 8वीं स्टेज ये होती है कि आप अपने शरीर को छोड़कर आत्मा से पूरे विश्व का भ्रमण कर सकते हैं।
अपने शिष्यों से शंकराचार्य ने कहा कि मुझे इस प्रश्न का जवाब देना है, मेरी शरीर की रक्षा करना, और आत्मा उनकी शरीर छोड़कर चली जाती है। लोग सोचेंगे ये मृत है, मृत नहीं है, स्थूल है। रास्ते में एक राजा का जा रहा था शव, सोचा था मर गए, उनकी आत्मा उनकी प्रवेश कर जाती है राजा के शरीर में। राजा उठ के बैठ जाते हैं, वो राजा फिर वापस आते हैं। 6 महीने तक शंकराचार्य राजा के शरीर में रह के सारे सुखों का अनुभव करते हैं जो जीवन के हैं। उसके बाद वो छोड़ के वापस आते हैं, अपने शरीर में वापस आते हैं, जाकर पैर छूते हैं मंडन मिश्र की पत्नी का, हाँ मां अब मैं तैयार हूं। और उन्होंने सारे संबंधों का जवाब दिया, पति पत्नी का, स्त्री पुरुष का। तो ये आपको योग की 8वीं स्थिति से ले जाके जब आप समझाएंगे, तब वो सॉफ्टवेयर जो आदरणीय सुधांशु जी का समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आग्रह करता हूं हमारे आज के चेयर सच्चिदानंद जोशी जी से कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। इस अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र के सम्माननीय वक्ता प्रोफेसर शांतिश्री पंडित, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय विद्वान देवियों, सज्जनों, प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अध्यक्ष के नाते मेरे सामने 2 विकल्प थे। पहला विकल्प था कि मैं अपने हिस्से का समय भी मेरे इन 2 विद्वान वक्ताओं को दे दूं, और जैसा कि हमारी परंपरा में होता है, अध्यक्ष को कुछ करना नहीं होता, सिर्फ बैठना होता है, तो मैं बैठ जाऊं, तो शायद मैं ज्यादा सुखी भी रहता। दूसरा विकल्प यह है कि कुछ बातें जो मेरे मन में भी घुमड़ रही हैं, शायद उन बातों को मैं व्यक्त कर दूं। इतने 2 विद्वान वक्ताओं के इतने सारगर्भित व्याख्यान और उद्बोधन के बाद मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के पास बहुत कुछ बोलने को नहीं रहता। फिर भी मैं कुछ प्रश्न उठा देना चाहता हूं। प्रश्न इसलिए उठा देना चाहता हूं क्योंकि हमारी परंपरा में जहां शास्त्रार्थ की बात कही गई है, जहां पर विवेचन की बात कही गई है, वहां पर प्रश्नों का और सही प्रश्नों का उठना बहुत आवश्यक है। अगर सही प्रश्न नहीं उठेंगे तो उसके उत्तर हमें सही ढंग से नहीं मिलेंगे। और इसलिए इस विद्वत सभा में अगर कोई मन को उद्वेलित करने वाले कुछ प्रश्न हमारे सामने आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। वो इसलिए भी जरूरी है कि मैं देश के सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के अवसर पर यहाँ खड़ा हूँ, और इसलिए संपूर्ण विद्वत समाज को, विशेषकर देश के संपूर्ण विद्वत समाज को दिशा देने का काम ये विश्वविद्यालय करता है। और इसलिए जो विचारों की धारा यहाँ से बहेगी वही दूर तक जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए सबसे पहला प्रश्न मैं यही करता हूं, रिविजिटिंग हम कह रहे हैं। प्रश्न उठता है कि हमने ढंग से पहले विजिट कर लिया है जो हम रिविजिट कर रहे हैं, या हम विजिट ही नहीं कर पाए हैं अभी तक। 75 वर्षों में क्या हम विजिट पूरी तरह कर सके हैं ताकि हम रिविजिट करें, या अभी सही ढंग से विजिट करने की आवश्यकता है? जैसा कि हमारे दोनों विद्वान वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य में बहुत सारी बातें कही हैं, लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक हमने विजिट ही नहीं की हैं, जो हमने देखी ही नहीं। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो बहुत खुशी से बहुत लोगों ने इस बात को कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बार संस्कृति का समावेश हुआ है। कल्चर हैज बीन इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम इन अवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और हम सब लोग बहुत खुश हुए, होना भी चाहिए, क्योंकि इतने वर्षों से कल्चर यानी संस्कृति हमारी शिक्षा नीति से कहीं बहुत दूर था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये खुशी की बात है? आप थोड़ी पीछे जाइए, 2500 साल पहले जाइए। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते थे। 16 संस्कारों में शिक्षा भी एक संस्कार होता था। उपनयन होता था, उसके बाद समावर्तन होता था, और उपनयन और समावर्तन के बीच में जो कुछ होता था वो शिक्षा होती थी। संस्कार संस्कृति का अंग है, यानी संस्कृति एक बड़ी इकाई है जिसके अंदर संस्कार है, और संस्कार के अंदर शिक्षा है। और हमें खुशी इस बात की हो रही है कि अब शिक्षा के अंदर संस्कृति आ गई है। आप इस बात को सोचिए। इस विद्वत सभा के सामने मैं ये प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या ये सचमुच खुशी की बात है कि स्वतंत्रता के 75 साल बाद हमने ये उपलब्धि हासिल की है कि हमारी शिक्षा का एक अंग संस्कृति हो गया है, जबकि बात में वास्तविक तथ्य यह है
कि इस संस्कृति के बगैर मेरा अस्तित्व ही नहीं। तो इसको विजिट करने की आवश्यकता है, इसको सोचने की आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। और अब ऐसा समय आ गया है, विशेषकर आज हम देखते हैं तो अब ऐसा समय आ गया है कि हमारे देश में हम क्रिएटिव इंटेलेक्ट से ज्यादा व्यक्ति की न्यूसेंस वैल्यू से भयभीत हैं। क्रिएटिव इंटेलेक्ट आज हाशिए पर है और व्यक्ति की न्यूसेंस वैल्यू आज हमें ओवर पावर करती है। और फिर भी हम इस श्लोक को कहते हैं, यदा चराति तव देवे तरोधनस यद प्रमाणम कुरुते लोकास्तत्तनुवर्तते। कहां गया क्रिएटिव इंटेलेक्ट? कहां गई सुपर पावर उस क्रिएटिव इंटेलेक्ट की जो हमारी भारत भूमि की थाती हुआ करती थी? और कहां है आज हम, जो हम सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू से घबराते, कतराते, डरते, बचते और उसके कारण अपना कहीं ना कहीं बायां दायां मार्ग ढूंढते नजर आ रहे हैं। इस चीज को विजिट करने की आवश्यकता है। अगर इस चीज को विजिट करेंगे तो ये शायद रिविजिट होगा। 7 वर्ष पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था, डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्योंकि भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है और आने वाले वर्षों में ये विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी विश्व को रूल करने वाली, जिस विश्व गुरु का उल्लेख आदरणीय सुधांशु जी ने अपने भाषण में किया। और प्रधानमंत्री जी भी सपना देखते हैं 2047 में। और 2047 की जब वो बात कहते तो वो कभी नहीं कहते कि भारत सुपर पावर होगा, सुपर मिलिट्री पावर होगा, सुपर साइंटिफिक पावर होगा, सुपर इकोनॉमिक पावर होगा। वो भी यही बात कहते हैं कि भारत सुपर इंटेलेक्चुअल पावर होगा, विश्व को दिशा दर्शन देने का काम करेगा। लेकिन विश्व को दिशा दर्शन देने का काम भारत तभी करेगा जब हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को सही ढंग से चैनलाइज कर सकेंगे। अगर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड सही ढंग से चैनलाइज नहीं हुआ तो ये हमारे लिए डिविडेंड नहीं होगा, काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और उसको सही ढंग से चैनलाइज करने का दायित्व इस विद्वत समाज का है जो मेरे सामने बैठा है। तो इसलिए हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरह की बातों से हमारे उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को सींचने वाले हैं, किस तरह की बातों से हम उसे समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, हो हमारी पूरे के पूरे विमर्श का विषय होना चाहिए। गांधी जी ने आज से 125 साल पहले जो कुछ हिंद स्वराज में कहा था, वे सारी बातें आज आपके सामने धीरे धीरे सही होती नजर आ रही हैं। उन्होंने जब बात की थी डॉक्टर्स और वकीलों की, तो उनका आशय था कि हमारी जिंदगी में प्रोफेशनलिज्म इस कदर हावी हो जाएगा कि हम सारे मानवीय मूल्य भूल जाएंगे, संवेदनाएं भूल जाएंगे। आज हम क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं। जब उन्होंने कहा कि यातायात के साधन होने चाहिए लेकिन व्यक्ति अपनी जड़ों से कटना नहीं चाहिए, आज क्या हालत है आप देखिए। आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया, इस बात को समझिए। जिस वक्त महात्मा गांधी ने यह बात कही थी उस वक्त भारत में 7.5 लाख गांव थे, आज भारत में 6.5 लाख गांव बचे। हमने जब प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययन किया तो हमने पढ़ा कि भारत की 80% आबादी गांव में बसती है। आज अगर आप नए सेंसस को देखेंगे तो शायद वो आबादी घट के 60% रहे। हमने हमारे गांव खो दिए हैं। अगर हमने हमारे गांव खो दिए तो इसका आशय सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक ज्योग्राफिकल एंटिटी खो दी है या हमने एक बसाहट खो दी है। दरअसल हमने हमारी संस्कृति खो दी है, हमने हमारी परंपरा खो दी है, हमने हमारी विरासत खो दी है, हमने हमारे संस्कार खो दिए। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और इन प्रश्नों को भी कहीं ना कहीं हम जब स्वराज का विषय उठाएं तो शायद हमें हमारे सामने इन सारे प्रश्नों को भी रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात हुई, जब गांधी जी ने स्वराज शब्द दिया था उसी समय लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य शब्द दिया था। स्वराज और स्वराज ये 2 अलग अलग अवधारणाएं हैं। और उसके बाद तीसरी अवधारणा सुराज की है, यानी स्वराज, स्वराज्य और सुराज, इन तीनों के बीच अवधारणाओं की दृष्टि से हमारे अंदर चिंतन मनन प्रारंभ होना चाहिए। इतने वर्षों में हम इन तीनों बातों के बीच में भी फर्क नहीं निकाल पा रहे हैं। इन तीनों बातों के बीच में भी कोई अंतर हम नहीं देख पा रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। हम दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन की बहुत बात करते हैं, पर जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही, हमारा पूरा का पूरा चिंतन अपने अंदर झांकने का है,
हम में से कितने लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय जी के उस एकात्म मानव को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश की, हमारे अपने समाज में उसको खोजने की कोशिश की है, उसे बांधने की कोशिश की है। कहाँ है वो राष्ट्र की चिति की अवधारणा जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी, और उस राष्ट्र की चिति की अवधारणा को कैसे हम अपने साथ लेकर चल पा रहे हैं, इस पर भी विमर्श होना चाहिए, इस पर भी सोच होना चाहिए। मित्रों, हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि हमने व्यक्ति से बहुत प्रेम किया, विचार से प्रेम नहीं किया। हमने गांधी से प्रेम किया, हमने तिलक से प्रेम किया, हमने अंबेडकर जी से प्रेम किया, हमने लोहिया से प्रेम किया, हमने दीनदयाल जी से प्रेम किया, हमने महर्षि अरविंद से प्रेम किया, हमने स्वामी विवेकानंद से प्रेम किया, सुब्रमण्यम भारती से प्रेम किया, लेकिन इनके किसी के विचार को पूर्ण रूप से अपने चिंतन में ढालने की कभी कोई कोशिश नहीं की। क्योंकि आज भी हम वो मॉडल ढूंढ रहे हैं कि दरअसल भारत का मॉडल होना क्या चाहिए, दरअसल भारत जा कहां रहा है और कैसे जाएगा, जो कि आपके चिंतन का विषय है। न्यू इंडिया, वो दरअसल न्यू इंडिया क्या है, न्यू इंडिया के विकास का मॉडल क्या होगा। आज विकास, उन्नति और प्रगति ये तीन शब्द हैं, और इन तीनों शब्दों के अलग अलग कोनोटेशन हैं, इन तीनों शब्दों के अलग अलग मायने हैं, इसके बारे में भी चिंतन नहीं है। आज हम डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बीच में अंतर नहीं बता पा रहे हैं, तो हमें डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बीच के अंतर को भी ढूंढना पड़ेगा। हमें उस बात को भी ढूंढना पड़ेगा कि एक समय एक तरफ भारत 22वीं शताब्दी में जा रहा है, दूसरी तरफ भारत का कोई हिस्सा अभी भी 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी की ओर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, हलचल कर रहा है। तो ये 22वीं शताब्दी का भारत और 18वीं शताब्दी का भारत, क्या ये न्यू इंडिया के जाते जाते तक आपस में कहीं जुड़ पाएगा? इसका चिंतन, इसका मॉडल ढूंढने की कोशिश ये कौन करने वाला है? उस प्रश्न को भी हमें कहीं ना कहीं हमारे सामने रखना होगा, उस प्रश्न को भी हमें हमारे सामने कहीं ना कहीं देखना होगा। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष है, 100वां वर्ष है। एक और विचारक हुए जिनका ये शताब्दी वर्ष है, वो हैं डॉक्टर धर्मपाल, और उन्होंने कालचित्त मानस एक बहुत सुंदर निबंध लिखा है। मुझे लगता है राजनीति शास्त्र के विभाग को कालचित्त मानस पे भी अलग से चर्चा करा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कालचित्त मानस पे चर्चा कराएंगे तो शायद हम बहुत सारे उन प्रश्नों के भी उत्तर दे पाएंगे जो हमें न्यू इंडिया के संदर्भ में प्राप्त करने की आवश्यकता है, नए भारत के संबंध में खोजने की आवश्यकता है। दुख इस बात का है कि इस हॉल के बाहर शायद बहुत सारे लोग डॉक्टर धर्मपाल का नाम भी न जान पाए, क्योंकि हमने अपने लोगों को ही सेलिब्रेट करना छोड़ दिया है, हमने अपने लोगों को ही एक तरह से उनके बारे में चिंतन करना, उनके बारे में मनन करना छोड़ दिया है। आज आवश्यकता, समय की आवश्यकता यह है कि हम उनके बारे में चिंतन करें, हम उनके बारे में मनन करें, और कहीं ना कहीं अपने अंदर से इन सारे प्रश्नों के भी उत्तर खोजने की कोशिश करें, जो कि इस पूरे विमर्श का शायद पूरा का पूरा निहित अर्थ होगा, निहित लक्ष्य होगा। इस विषय पर चर्चा करना बहुत साधारण बात नहीं है। एक तरह से ये शिव धनुष को उठाने की जैसी ही एक कवायत है, एक एक्सरसाइज है। मराठी में बोलते हैं कोई बड़ा असाध्य काम आप करते हैं तो बोलते हैं आपने शिव धनुष पेला है, शिव धनुष उठाया। तो इतने महत्वपूर्ण विषय पर अगर आप चिंतन कर रहे हैं तो ये हौसला, ये मादा, ये हिम्मत शायद दिल्ली विश्वविद्यालय में ही थी कि वो इस शिव धनुष को लोगों के सामने प्रस्तुत करते। लेकिन मेरी उसके साथ एक वर्ड ऑफ कॉशन भी है, आप राजा जनक बन के सिर्फ शिव धनुष को लोगों के सामने मत रखिए। आप जानकी बनिए, आप भगवान श्री राम बनिए और इस शिव धनुष को उठाकर इससे संधान कीजिए। जब तक आप जानकी या राम बन के शिव धनुष का संधान नहीं करेंगे, सिर्फ शिव धनुष को बार बार लोगों के सामने लाने से कोई अर्थ नहीं होगा। इस विमर्श की कोई दिशा तय होनी चाहिए, इस विमर्श से कहीं कुछ और चीजें निकलनी चाहिए, और उस दृष्टि से जब आप सोचेंगे तब शायद हम उस नए भारत की कल्पना कर सकेंगे जिस नए भारत को आप दरअसल रिविजिट करना चाहते हैं। इतने सुंदर संवाद के बाद और अधिक बात मैं नहीं कहता, अपनी बात समाप्त कर रहा हूं सुब्रमण्यम भारती की प्रसिद्ध कविता से। शायद आपने सुनी होगी, मैंने इसका हिंदी अनुवाद कहीं से प्राप्त किया जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। चमक रहा उत्तुंग हिमालय, ये नगराज हमारा ही है।
चमक रहा उत्तुंग हिमालय ये नगराज हमारा ही है, जोड़ नहीं धरती पर जिसका ये नगराज हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। सम्मानित जो सकल विश्व में, महिमा जिसकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। यह है भारत देश हमारा, महारथी हुए जहां पर, यह है देश मही का स्वर्णिम, ऋषियों ने तप किए जहां पर। यह है देश जहां नारद के गूंजे मधुमय गान कभी थे। यह है देश जहां पर बसते बनते सर्वोत्तम सामान कभी थे। यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। यह है देश जहां पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चैतन। है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह ज्ञान हमारा। है क्या हमसा कोई जगत में, यह है भारत देश हमारा। ये कविता आज से 125 साल पहले सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखी है और इसकी पंक्तियां आज भी अक्षरशः 100% सही हैं। हम सबका दायित्व ये है कि भविष्य में भी ये प्रतियां 100% खरी ही उतरे। हम सब मिलकर इसका आज संकल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिछले जो 1.5 घंटे में चर्चा हुई उससे लगता नहीं कि ये खत्म हो और चलती जाए, और जिस भावभूमि पे हम पिछले 90 मिनट में थे उससे जाहिर सी बात है कि कहीं और इस समय विचरण कर रहे हैं। इस सब के लिए आप तीनों ही जो पैनलिस्ट थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जब शांतिश्री मैम ने हमें बताया कि संगम लिटरेचर में भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा है, और ये कहीं जो हमारी पूरी हिस्ट्री है वो सिर्फ रिलीजन की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, उसके बियॉन्ड भी पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। या जब डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी बता रहे थे कि शून्य हमने खोजा, लेकिन क्यों खोजा? क्योंकि अनंत की खोज कर रहे थे। भारत एक सनातन यात्रा है, एक सनातन विचार प्रवाह है, जहां पे अनंत की खोज यहीं पे हो सकती है। शायद इसलिए कहीं शून्य की खोज हो रही थी। या जब डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी बता रहे थे कि काल, चित्त और मानस की बात कर रहे थे, और शिक्षा में अब हम संस्कृति को खोज रहे हैं, जब संस्कृति का हिस्सा होती थी शिक्षा। तो इस तरह के विषय आज यहाँ सब आए और हम सब लोगों ने उसे सुना, समझा। एक ही दिन एक ही छत के नीचे सभी समस्या के, सभी सवालों के समाधान मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। भारत जिसका कि अपना भाव है, राग है, ताल है, वो ऐसा कर ले जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। और ये विचार यात्रा लगातार चलती रहेगी। कल भी हमने इस पे चर्चा की थी और कल भी इस पे चर्चा करने वाले हैं। आप सब हमारे बीच में आए। डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, मेंबर सेक्रेटरी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, हमारे बीच में आए और उन्होंने स्वीकार किया इस सत्र की अध्यक्षता करने। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री पंडित जी, कल ही आप डायनेस्टी पॉलिटिक्स में एक नेशनल सिंपोजियम में हिस्सा ले रहे थे, आज उन्होंने उसकी चर्चा भी की, और बहुत ही व्यस्त शेड्यूल रहता है आपका, आपने समय निकाला, उसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, जैसा मैं आपको बता रहा था कि आईवी लीग कंट्रीज में पॉलिटिक्स पे नहीं, साइंस, रिलीजन, और आप मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप अभी जब हमारी चर्चा हो रही थी भाई साहब से, तो आप उस समय भी यूनाइटेड स्टेट्स में पेंसिल्वेनिया में छात्रों से मिल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। उसके बावजूद व्यस्तम समय से आपने समय निकाल के हमारे बीच आना स्वीकार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कार्यक्रम के हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीत रागी जी, जो सारी इन्होंने कार्यक्रम को दिशा दी और उसको पूरी योजना रचना की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह जी, डायरेक्टर साउथ कैंपस, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि इस पूरे कार्यक्रम के चाहे टॉपिक हो, चाहे ये वक्ता हो, और चाहे सारे सब थीम्स हो, सबकी रिव्यू रचना करने में आपकी अग्रणी भूमिका रही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रथम पंक्ति में भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य हैं डिपार्टमेंट से। प्रोफेसर रेखा सक्सेना मैम है, मक्खनलाल जी आए हुए हैं, लावण्या वेमसानी जी यूनाइटेड स्टेट्स से आई हुई हैं, कुंदन सिंह जी यूनाइटेड स्टेट्स से आए हुए। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय के और अन्य विश्वविद्यालय के बहुत सारे प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट हमारे बीच में आए। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में धन्यवाद हमारे वाइस चांसलर सर का, जो जब पूरे भाषण वाले सत्र में तो हमारे साथ थे, अभी आगे भी आपके साथ वो जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 10 मिनट बाद फिर से यहाँ इकट्ठा होंगे अगले सत्र के लिए। आप सभी को मैं चाय पे आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद।